রাজ্যের জঙ্গি যোগ নিয়ে যে খবরের দিকে এবার নজর রাখবো। আবু সুফিয়ান আরো এক জঙ্গি, তার বাড়িতে অস্ত্রাগারের হদিশ মিলেছে। আবু সুফিয়ানের বাড়িতে লেদ মেশিন পাওয়া গিয়েছে। রানীনগরের যেই বাড়িতে সুড়ঙ্গ পাওয়া গিয়েছিল সেই বাড়ি থেকে এই লেদ মেশিন পাওয়া গিয়েছে বলে আমরা জানতে পারছি। আরো খবর আমরা নিয়ে নেবো। আমাদের প্রতিনিধি অনুপ চক্রবর্তী এই মুহূর্তে ফোনে রয়েছে। অনুপ, জানতে চাইবো তোমার কাছ থেকে এই বিষয়ে কি তথ্য উঠে আসছে। দেখো, এনআইএ সূত্রে খবর যে রানীনগরে আবু সুফিয়ানের যে বাড়ি, সেই বাড়ি থেকে যখন এনআইএর আধিকারিকরা যখন তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল, শনিবারই কিন্তু এই আগ্নেয়াস্ত্র বানানো হতো এমনটাই কিন্তু জানতে পেরেছে, এবং সেখান থেকে লেদ মেশিন উদ্ধার করা হয়েছে এবং তৈরি করা হতো লকেট লঞ্চার। এমনও কিন্তু ইতিমধ্যেই এনআইএ আধিকারিকরা এই সমস্ত তথ্যগুলো সামনে আনছে। যেহেতু শনিবারেই যখন অভিযান চালানো হয়েছিল, তারপরেই ওগুলো উদ্ধার করা যেত বাড়ি থেকে। আবু সুফিয়ানের বাড়ি থেকে মূলত এই জিনিসগুলো উদ্ধার হয়েছিল। পরবর্তী সময় এনআইএ আধিকারিকরা সমস্ত রকম ভাবেই কিন্তু খতিয়ে দেখে যে এগুলো কি কি কাজে মূলত ব্যবহার করা হতো। তারপরে আজকেই কিন্তু এনআইএ এর পক্ষ থেকে অফিসিয়ালি ভাবে জানানো হচ্ছে যে শনিবারে এই সমস্ত লেদ মেশিন থেকে শুরু করে অস্ত্র বানানো হতো এবং লকেট লঞ্চারও তৈরি করা হতো। এই সমস্ত জিনিসগুলি উদ্ধার করতে পেরেছে এবং আরো কোথায় কোথায় এরকম ভাবে তৈরি করা হতো লেদ মেশিন থেকে বেশ কিছু খোঁজ পেতে চায়। সেই কারণেই আজকে আবু সুফিয়ানকে কিন্তু আলাদাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। দিল্লির যে এনআইএ সদর দপ্তর, সেই দপ্তরেই কিছুক্ষণের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হবে বলে জানতে পারা যাচ্ছে। একদমই নজর রাখো তুমি তদন্তের দিকে। কথা বলছিলাম প্রতিনিধি অনুপ চক্রবর্তীর সঙ্গে। যে খবর এবার চোখ রাখবো, স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে ভারত চীন দুদেশই সীমান্তে সেনা পাঠানো বন্ধ করছে। লাদাখে সীমান্ত উত্তেজনা কমাতে প্রায় 1.5 মাস পর বৈঠকে বসে ভারত চীন। মলদোয় সোমবার সকালে শুরু হওয়া বৈঠক প্রায় 14 ঘন্টা চলে এবং সেই বৈঠকেই কিন্তু যৌথভাবে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সে সম্পর্কে আমরা জেনে নেব। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন কৃষাণু বন্দ্যোপাধ্যায় নিউজ রুম থেকে। কৃষাণু, এর আগেও কিন্তু আমরা দেখেছি বৈঠক হয়েছে, চীনের পক্ষ থেকে এই সমস্ত বিষয় বা সেনা পাঠানো হবে না এই সমস্ত আগেও বলা হয়েছে। এবারে যদিও দীর্ঘ সময় প্রায় 14 ঘন্টার এই বৈঠক হয়েছে, শেষ পর্যন্ত যে সিদ্ধান্তগুলো উঠে আসছে সেইগুলো প্রথমে জানতে চাইবো তোমার কাছ থেকে। সমাজিত প্রথমেই দুদেশের তরফ থেকে যে সেনা পর্যায়ের বৈঠক হয়েছে, 6ষ্ঠ দফা যে বৈঠক হয়েছে মলডোতে, তার সম্পর্কে যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে দুদেশই চেষ্টা করবে যে যাতে তৃণমূল স্তরে বোঝাপড়া বজায় থাকে এবং কোনো রকম ভুল বোঝাবুঝি না হয় এবং সীমান্তে কোনো রকমভাবে উত্তেজনা যাতে আর না বাড়ে, তার জন্য দুদেশই কিন্তু সেনা আর বাড়াবে না, এই রকম একটা বিবৃতি তারা জারি করেছে এবং বলা হয়েছে যে কোনো দেশই একতরফাভাবে সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর যে স্থিতাবস্থা সেটাকে ভাঙার চেষ্টা করবে না। কিন্তু একই সঙ্গে লক্ষণীয় যে এই মলডোর যে বৈঠক, তাতে কিন্তু এই প্রথম বিদেশ দপ্তরের যুগ্ম সচিব পর্যায়ের একজন অফিসার তিনি কিন্তু উপস্থিত ছিলেন, নবীন শ্রীবাস্তব বলে। ফলে সেনা পর্যায়ের বৈঠকে কিন্তু কূটনৈতিক স্তরের কোনো অফিসার থাকেন না, আধিকারিক থাকেন না, এটাও কিন্তু লক্ষণীয়। সমাদিত্য। একদমই, এবং ইতিমধ্যেই যে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে তাতে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে তাতে কিন্তু আরো একটা বিষয় উঠে আসছে। একদিকে যেরকম ভাবে এই বৈঠকে সিদ্ধান্তের কথা বলা হচ্ছে, প্রায় একই সুর কিন্তু শোনা যাচ্ছে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর গলায়, এবং সেখানে তিনি বলেছেন সীমান্তে উত্তেজনা বজায় রেখেই মুখে শান্তির বার্তা চীনা প্রেসিডেন্টের। কোনো দেশের সঙ্গেই ঠান্ডা লড়াই বা উত্তপ্ত যুদ্ধে যেতে চায় না চীন। কতটা তাৎপর্যপূর্ণ এই আবহে জিনপিং এর এই বার্তা? প্রথমেই যেটা বলে রাখা বা স্পষ্ট করা ভালো যে 29-30 আগস্টে যখন চীনা সেনা প্যাংগং লেকের দক্ষিণ পাড় বরাবর এগোনোর চেষ্টা করে এবং ভারতীয় সেনা তাদের বাধা দেয় এবং প্রথম 45 বছরে ভারত চীনের মধ্যে গুলি চলে এবং চীনা সেনা গুলি চালায়, তারপর থেকেই কিন্তু ভারতীয় সেনা প্যাংগংয়ের দক্ষিণ পাড়ে বেশ কয়েকটি যে উঁচু জায়গা আছে বা গিরিচূড়া আছে সেগুলো কিন্তু দখল করে রেখেছে। ফলে ভারতীয় সেনা অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় আছে এবং মনে করা হচ্ছে যে চীনের যে বিভিন্ন রকমের সেনাঘাঁটি আছে, যেটা থাকুং সেনাঘাঁটি বা স্প্যাঙ্গুর লেকের দিকে যে সেনা চলাচল চলছে, মুভমেন্ট চলছে, সেগুলো সমস্তই কিন্তু ভারতের নজরে রয়েছে। ফলে ভারত অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে এবং তার সঙ্গে মনে রাখা ভালো যে এর কিছুদিন বাদেই কিন্তু শীত আসছে এবং লাদাখে যেখানটায় আমাদের মূলত উত্তেজনা রয়েছে সেখানে কিন্তু -25°C পর্যন্ত ঠান্ডা পড়ে এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে ভারতীয় সেনা কিন্তু একটু সুবিধাজনক অবস্থা রয়েছে। এই অবস্থান থেকেই মনে করে যে চীন একটু সুর নরম করছে এবং কিছুটা হলেও তারা চাইছে যে উত্তেজনার আবহাওয়া একটু কমুক। সমাদিত্য। ধন্যবাদ কৃষাণু। চীনকে বিশ্বাস নেই, একাধিক আলোচনার পরও লাদাখ সীমানায় একের পর এক উস্কানি। চীন সেনার মোকাবিলায় প্রস্তুত ভারতও। ভারতীয় সেনার সঙ্গে প্রস্তুত আইটিবিপির জওয়ানরাও। লাদাখের আইটিবিপির ক্যাম্প থেকে আমাদের প্রতিনিধি অরুণ সিং এর এক্সক্লুসিভ রিপোর্ট। भारत चीन सरहद पर जबरदस्त तनाव है, युद्ध की आशंका बनी हुई है, लेकिन इस बीच
चीन की सेना के आंखों में आंखें डालकर हमारे आईटीबीपी के जवान किस तरह से मां भारती की रक्षा कर रहे हैं, एक एक इंच जमीन पर डटे हुए हैं और चीन की सेना को लगातार मात दे रहे हैं। चीन के साथ युद्ध की आशंका लगातार बनी हुई है, लेकिन भारतीय सेना किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए लगातार अभ्यास में जुटी है। हम इस वक्त आईटीबीपी के ट्रेनिंग कैंप में हैं, जहां सरहद पर जो सैनिक जाते हैं उसके पहले यहां पर वो अपनी तैयारी परखते हैं, अपने आप को तरोताजा रखते हैं। इस वक्त आईटीबीपी के जवानों को मार्शल आर्ट की जो ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर अगर जहां पर एमुनिशन आर्म्स का इस्तेमाल नहीं करना होता है वहां हाथ से ही अक्सर लड़ाई होती है। आपने देखा होगा कि भारत चीन सीमा पर अक्सर दोनों देशों की सेनाओं के बीच हाथ से ही लड़ाई होती है, क्योंकि दोनों देशों के बीच समझौता है कि गोली नहीं चलेगी। और इसलिए अपने सीमा की रक्षा करने के लिए, अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए ये जो सैनिक हैं, ये जो आईटीबीपी के जवान हैं, हाथों से ही चीन की सेना को जवाब देते हैं, चीन की पैरामिलिट्री को जवाब देते हैं। और ये ट्रेनिंग इसलिए भी जरूरी है कि अगर युद्ध के दौरान आर्म्स एमुनिशन नहीं रहते हैं सैनिकों के पास, तो वो दुश्मन सैनिकों को कैसे पछाड़ सकते हैं। इसी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के जरिए ये दुश्मन पर काबू पाते हैं। तो सीमा पर जो ये सैनिक हमारे तैनात हैं, वो लगातार अपने आप को तरोताजा और एक्टिव रखने के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। और आप देखिए एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन है, हम लोकेशन नहीं बताएंगे, लेकिन इतना आपको दिखाते हैं कि आईटीबीपी के जवान किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए, अगर चीन के साथ युद्ध होता है तो उनको मात देने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया। চলছে আইটিবিপির গুলি চালানোর মহড়াও গ্রাউন্ড জিরোয় নিউজ 18 বাংলা। चीन के साथ सरहद पर तनाव लगातार बरकरार है। आईटीबीपी के जवान मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन कैसे वो ट्रेनिंग करते हैं, कैसे निशाना लगाने की प्रैक्टिस करते हैं और कैसे दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। मैं इस वक्त आईटीबीपी के ट्रेनिंग सेक्टर में हूं और देखिए यहां पर ड्रिल जो हो रही है वो डमी ड्रिल है, लेकिन यही इसी तरह का मंजर होता है युद्ध के मैदान में। और चूंकि भारत चीन सीमा पर इस कदर तनाव है कि किसी भी वक्त वहां पर जंग छिड़ सकती है, और इसीलिए उस हाई एल्टीट्यूड में भी जाकर के अपने आप को फिट रख के कैसे फायरिंग करके दुश्मन को ढेर कर देना है, उसकी ट्रेनिंग यहाँ चल रही है। देखिए ये जो जवान है रेंगते हुए आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से सामने दुश्मन की सेना है। आप देखिए ये जो दुश्मन की सेना है उन पर ये निशाना लगाएंगे। हमारे कैमरा पर्सन राकेश नेगी दिखाएंगे आपको कि सामने दुश्मन की सेना है और यहाँ पर देखिए कई कटआउट खड़े हैं और इन्हीं पर निशाना ये लगा रहे हैं हमारे आईटीबीपी के जवान। तो हिंदुस्तान लगातार अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रहा है, अपनी तैयारियों को जांच परख रहा है और ये सभी हमारे जवान तैयार हैं सेना के लिए वहां पर जाकर के चीन को सबक सिखाने के लिए। युद्ध के समय परिस्थितियां कैसी होती हैं, उन्हीं परिस्थितियों में आईटीबीपी के जवान ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर धुआं है और इस धुएं के बीच बढ़ते हुए सैनिक अपने टारगेट की तरफ जाते हैं। यानी अगर आप सपोज करें कि ये सामने की जो चोटी है यहाँ पर चीन के सैनिक हैं और यहाँ पर हमारे सैनिक हैं, वो चोटी पर हैं, तो कैसे बचते बचाते उनकी फायरिंग से, उनकी फायरिंग रेंज में ना आते हुए, उनको धोखा देते हुए, उनको न दिखे, इसके लिए इस तरह से स्मोक फायर किया जाता है। और इसी तरह से इस स्मोक फायर के बीच में देखिए किस तरह से सैनिक हैं, हमारे सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, देखिए हथियारों के साथ और दुश्मन को चकमा देते हुए। इस तरह से देखिए मैं भी नहीं दिख रहा हूँ आपको, शायद इस धुएं में मैं भी नहीं दिख रहा हूँ, और इसी धुएं के बीच ये जो हमारे सैनिक हैं देखिए आड़ लेते हुए, दुश्मन को चौंकाते हुए अचानक उनके करीब पहुंच जाएंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि एक सैनिक देखिए धावे पर तैयार हो गए सैनिक और इन्होंने गोली चलाना शुरू कर दिया है। यानी भारत चीन के बीच अगर युद्ध होता है तो किस तरह से स्मोक के जरिए दुश्मन को धोखा देते हुए टारगेट तक पहुंचेंगे। और ये देखिए पीछे स्मोक यहाँ पर चलाया गया था और वहां पर जाकर के और ढेर कर देंगे दुश्मन देश के सैनिकों के लिए। देखिए यहाँ पर लगातार ये जो टारगेट है आगे, इन टारगेट पर निशाना ये हमारे जो सैनिक है साध रहे हैं। तो लगातार इस तरह से रियल वार टाइम जिस तरह से युद्ध होता है उन्हीं परिस्थितियों में हमारे सैनिक लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, लद्दाख। 17,000 ফিট উপরে চলছে পেট্রোলিং, সেই ছবি ধরা পড়েছে নিউজ 18 এর ক্যামেরায়। आईटीबीपी के जवान किस तरह से हिंदुस्तान की सरहद की सुरक्षा कर रहे हैं और चाइनीज एग्रेशन से किस तरह से लड़ रहे हैं, उसकी हम आपको लाइव बांध के दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर ये स्मोक है और इसके ऊपर की पहाड़ी अगर आप देखिए तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आईटीबीपी के जवान किस तरह से अपनी सरहद की हिफाजत कर रहे हैं। हथियारों से लैस है आईटीबीपी के जवान और एक दूर आसमान में आपको ये सैनिक खड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे और हमारी आर्मी भी है वहां पर और हमारे आईटीबीपी के जवान हैं। ये सब मिल करके बॉर्डर की पेट्रोलिंग करते हैं और वहीं से नजर बनाए रखते हैं कि चीन कहीं आगे तो नहीं बढ़ रहा है, उसकी फॉरवर्ड लोकेशन पर क्या एक्टिविटी हो रही है। तो इस वक्त जो आप देख रहे हैं देखिए
पेट्रोलिंग कर रहे हैं यहाँ पर जो हमारे आईटीबीपी के जवान हैं और आर्मी भी उसके पास है और ये दोनों मिलकर के भारत की सीमा की सुरक्षा करते हैं। तो इस वक्त तस्वीरों में देखिए किस तरह से आर्म्स अम्युनिशन लेकर के, रसद लेकर के और कई कई घंटे की ये पेट्रोलिंग होती है। और यही पेट्रोलिंग इस वक्त हो रही है जो भारत और चीन का बॉर्डर है, वहां पर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे जवान। और लगातार इसी तरह की परिस्थितियों में वो सीमा पर भी मां भारती की सुरक्षा के लिए लगातार तैनात रहते हैं, तत्पर रहते हैं। ये ऊंचाई कभी कभी 17,000 फुट हो जाती है, कभी बर्फ होता है, कभी वहां भीषण गर्मी होती है, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में हमारे आईटीबीपी के जवान, आर्मी के जवान लगातार हिंदुस्तान की हिफाजत में सक्रिय रहते हैं। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, लद्दाख। আইটিবিপির সঙ্গে যৌথভাবে টহলদারি চালাচ্ছে সেনাও। भारत चीन सीमा पर आसमान छूती पहाड़ियों के बीच आईटीबीपी के जवान किस तरह से 24 घंटा चौकस नजर अपनी सीमा पर रखते हैं, उसकी बानगी देखिए। लाइव तस्वीरें आप देखिए कि ये जो जवान है आईटीबीपी के, ये न सिर्फ युद्ध में दुश्मन के दांत खट्टे करते हैं, बल्कि 24 घंटे अपने सीमा की निगहबानी करते हैं, अपने सरहद की सुरक्षा करते हैं। ये जो पेट्रोलिंग पॉइंट है, यहां से ये वापस लौट रहे हैं और ये जो पेट्रोलिंग पार्टी है, ये 4 बजे भोर में यहां से निकली थी अपने बेस से और लगभग 6 घंटे रेकी करने के बाद कि चीन ने कहीं कोई अवैध निर्माण तो नहीं कर लिया, कहीं कोई स्ट्रक्चर तो खड़ा करने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये जवान घंटों की पेट्रोलिंग के बाद वापस लौट रहे हैं। तो आईटीबीपी के जवान देखिए, हमारी सांस फूल रही है क्योंकि हमने पहाड़ी पर हमको चढ़ना पड़ा ऊपर। ये जवान न जाने कितने फुट ऊंचाई पर, कई बार ये 17,000 फुट की ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन बेहद कम होता है, वहां जाकर पेट्रोलिंग करते हैं। और ये जो हमारे सैनिक हैं, ये पेट्रोलिंग करके आर्मी के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग भी आईटीबीपी की होती है और वहां से वापस लौट रहे हैं, ये सिक्योर करके कि हमारी सरहद के आसपास कहीं कोई निर्माण किसी ने, दुश्मन देश ने नहीं किया है। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, लद्दाख। রিলায়েন্সে ফের বিনিয়োগ কেকেআরের। আমেরিকান সংস্থা কেকেআর রিলায়েন্স রিটেলে 5,500 কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে। রিলায়েন্স রিটেলের 1.28% শেয়ার কিনে নিল কেকেআর। আমাদের সঙ্গে সোমনাথ ভট্টাচার্য, আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন ফোনে, কথা বলে নেব সরাসরি তার সঙ্গে। সোমনাথ, জানতে চাইবো এই বিনিয়োগ সম্পর্কে। দেখুন, মাত্র 25 দিনের মাথাতে, এর আগে 25 দিন আগে আমরা দেখেছিলাম যে রিলায়েন্স রিটেলে সিলভার লেক বিনিয়োগ করেছিল। এবার যেটা জানা যাচ্ছে যে কেকেআর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বড় ফান্ড হাউস, তারা রিলায়েন্স সংস্থায় টাকা ঢেলেছে এবং 5,500 কোটি টাকা প্রাথমিকভাবে ঢালা হয়েছে এবং এই জন্য 1.28% শেয়ার তারা হাতে নিচ্ছে। এই মুহূর্তে জানিয়ে রাখি, রিলায়েন্স রিটেল এই মুহূর্তে দেশের সব থেকে বড় রিটেল সংস্থা এবং ফিউচার গ্রুপ অধিগ্রহণ করার পর রিলায়েন্স রিটেল কার্যত অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে এবং সেই জায়গা থেকেই বিরাট সম্ভাবনার বাজার তাদের সামনে খুলে গিয়েছে এবং সেই জন্য এই লগ্নি বলে মনে করা হচ্ছে। ধন্যবাদ সোমনাথ।